Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you all? कैसे हैं आप लोग? Fine, sir. We are fine, sir. Good. And you? कोई कोई आई एम ऑल्सो गुड. कोई क्वेश्चन है आपके मन में? No, sir. Today we will discuss about effective communication skills for marketing professionals. एक मार्केटिंग प्रोफेशनल के अंदर वो कौन-कौन सी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कैसे वो अपने कम्युनिकेशंस को ग्रो करे, so that the person should be more effective while dealing with their professionals, their clients, customers. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Fine. Basic objective is to understand about communication and the communication process, how to overcome the filters and barriers in the communication process, and practice active listening. Until or unless we don't practice active listening, it is very difficult to understand communication process. So we need to do it. Then एक्सक्यूज मी how to सर। improve? Yes. सर कल आपने क्वेश्चन पूछा था Hmm. गुड लिसनर के बारे में। आप बता रहे थे कि अगर जब हम लोग सुनेंगे तो कैसे सुन सकते। तो सर जब हम Yes. लोग बात कर रहे होंगे तो बात Hmm. करने के टाइम जब सिमेटिक बैरियर्स होंगे तो उसको कैसे Hmm. दूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग Hmm. बात कर रहे हैं राइट वे की, तो देयर आर टू Right. स्पेल। एक होता है राइट जो राइट वे चलता है, और एक राइट जो Okay. हम लिख रहे हैं। तो वो कैसे समझ आएगा कि किस राइट के बारे में बात कर रहे हैं। That depends upon two factors, phonetics and IQ. Okay. यस सर। That depends upon two factors. One is the phonetics and one is the IQ. The moment we are discussing something, then we can understand the whether it is right way or whether it is to right. And this type of confusion happens, but once we need to write it, convert it into application, we utilize our intelligence quotient in that way that in which context it is applicable to, कहाँ applicable हो पा रहा है, that must be able to understood. Okay, Prana, just suppose we are interacting. Here we are talking about communication. So communication is, that means right way, rather right writing. Getting my word? So यस सर। there are some differences, and this type of confusion may takes from different words too. But actively, only active listen can ignore these kind of confusions. Because if you are active listener, then your intelligent quotient will guide you what should be there the proper word. Fine. यस सर। Any more questions? नो सर। Okay. What is communication? It is the art of transmitting information, ideas, and attitude from one person to another. Communicate
the process of meaningful interaction among human beings. थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ दीजिए, कम इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट. क्या हमने कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती, हाउ वी complete this process? Anyone would like to answer? Sir, repeat it once again. When we see or when we understand the word communication, what factors brings into our mind to initiate this process? Or if we want to interact with someone, then what are the different stimuli, what are the different variables which prompt us to act? Anyone could enlighten us? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, बेसिक प्रोसेस चलता कैसे है? So, जैसे अभी मैं आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, योर माइंड इज इन प्रोसेसिंग. कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर माइंड? नो. no, sir. See, what is this? This is pen. How do you Spencer. know? How do you know? Because of So, its आपने image. Yes, sir. मैंने जो दिखाया, because of its image. Yes, sir. I asked communication, you are not able to reply, but still the process is in your mind. Getting my word? दिमाग में कुछ ना कुछ तो हलचल मची है, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, बट हम क्या बोले, कैसे बोले, सही होगा, गलत होगा, हमको नहीं पता, थोड़ा बहुत पता. Different types of contradictions are within our mindset. Still we are not able to respond. बट जैसे ही ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, हम बता देंगे सर ये पेन है, क्योंकि तो पता है हमें इसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में जो प्री डिपॉजिट स्ट्रक्चर्ड है उससे मैच करता है. दूसरा एग्जांपल, व्हाट इज दिस? This is Copy. notebook. कैसे पता? Image. It's all about image. एग्जैक्टली. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम किसी से इंटरैक्ट जब करते हैं, जैसा ही कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, prior to beginning of the communication there is 3 different things are there. ठीक है? IDC, Yes, sir. intelligence. बोलो. Yes, sir. I have a question. सर, जैसे कि आपने बोला ना कि अगर हम लोग इमेज देखते हैं तब समझ में आता है कि ये क्या है, बट सर कितनी बार जैसे कि हम लोग ना इमेज देखने पर भी नहीं समझ पाते ये क्या है, मैं आने तो हम वाला लोग था जब उस पॉइंट पे. उसे करते हैं ना तब समझ में आता है हाँ ये जान पाते. मैं उस पॉइंट पे आने वाला था बहुत जल्दी. आई ओके वाज सर. डिस्कसिंग बिफोर इंटरैक्टिंग, बिफोर कम्युनिकेशन एक फॉर्मूला हमारे माइंड में काम करता है, उसको बोलते हैं IDC. ठीक है? ओके दैट सर. इज आई. मेरे पास चूंकि अभी मैं बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं आप डायग्राम बना के दिखाता. आई स्टैंड फॉर, आप चाहो तो आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में अगर आपके आसपास हो तो, या मोबाइल में आप टाइप कर लो, बाद में आप नोटबुक में लिख लेना. IDC. I stand for intelligence, D stand for design, and C stand for choice. ठीक है? IDC मॉडल चैट बॉक्स में डाल देता हूं. IDC मॉडल. नाउ द पॉइंट इज कि ये IDC मॉडल क्या है सर? ये तो हमने कभी पहले सुना नहीं, न देखा, न समझा. ऐसे कैसे कुछ भी कम्युनिकेशन होने से पहले IDC होगा? 15 सेकेंड के लिए. D स्टैंड फॉर डिजाइन. सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अगले 5 सेकंड के लिए आप लोग सब लोग अनम्यूट होइए. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कीजिएगा एक साथ. ओके सर.
A for apple, Actual. For A action. for ball, A for A for Action. सबकी आवाज नहीं आई मुझे। A for Action. एप्पल। अब आप लोग म्यूट हो जाइए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने। क्या आपको नहीं पता ए से एरोप्लेन होता है? क्या आपको नहीं पता ए से एटीट्यूड होता है? आप में से कितने लोगों का नाम ए से है? अतुल प्रकाश रिसेंटली ज्वाइंड, अर्चना ऑलरेडी ज्वाइंड, अभिषेक ऑलरेडी ज्वाइंड, आशीष ऑलरेडी ज्वाइंड। व्हाई एप्पल? एनीबॉडी कुड आंसर? सर सर बट एक्शन बोला था। ए फॉर क्या बोला था तुमने? Action. एक्शन जो Action. Actual. चलो ठीक है, जो तुम्हारे मन में आया तुमने बोल दिया। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमारे क्लास में अभी ए नाम से कई सारे बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। बहुत सारे चीजों को हम जानते हैं। अगर हमको ए वर्ड से लिखने के लिए कहा जाए, वी कैन राइट मोर देन 100 वर्ड्स अनडाउटली। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उसमें आर्ट लिखा हुआ है, एटीट्यूड लिखा हुआ है, 2 वर्ड तो आपके सामने दिख रहा है ना? एक्शंस भी लिखा हुआ है। यस सर। हमारा माइंड एप्पल की तरफ क्यों प्रोसेस किया? मैं ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअली मैं बचपन से एप्पल ही सोचती है, तो ये काइंड ऑफ हमारा माइंडसेट बन जाता है कि जैसे कोई ए फॉर पूछता है तो हमारे माइंड में तुरंत इंटरप्रिटेशन आती है एप्पल के लिए। तो Exactly, इसीलिए you are right. That is what intelligence already deposited in our mindset. आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना, बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है। आपके मोबाइल में डेटा भर जाता है, आप मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफर करते हो, अनयूजफुल डेटा डिलीट कर देते हो। लेकिन बचपन में हमने कभी पढ़ा था, जब आपने स्कूलिंग स्टार्ट की थी प्री स्कूल में ही, ए फॉर एप्पल आपको आज भी याद है और आखिरी सांस तक याद रहेगी। बट इनके बीच में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना भी होते हैं जो हम भूल जाते हैं और बहुत सारा डेटा हमको याद नहीं रहता है, बिकॉज देर इज परमानेंट डिपोजिशन। ये हमारा माइंड एक ऐसा हार्ड डिस्क है जहां कुछ भी जो हम डालते हैं वो परमानेंट डिपॉजिट होता है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है, समय बीतता जाता है, वी आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, माइंड रूपी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती चली जाती है। और हम और ज्यादा, जब हम स्टार्ट किए स्कूलिंग, अल्फाबेट सीखे, राइम सीखना शुरू किए, काउंटिंग सीखना शुरू किए, अभी तक हम पहुंच गए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो डेफिनेटली उस समय से अभी तक के बीच में हमारा हार्ड डिस्क में कुछ एक्सपेंशन हुआ है। ये बिल्कुल हुआ है, और आने वाले समय में जब आप वर्किंग में जाएंगे और ज्यादा एक्सपेंशन आपको, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप पाएंगे कि हार्ड डिस्क हमारा ग्रेजुअली अपग्रेड कर रहा है। The point which I wanted to discuss is that intelligence means pre-deposited set of knowledge. हमारे माइंड में एक नॉलेज, एक स्किल्स पहले से सेट है। वो स्ट्रक्चर ए फोर जैसे ही आता है वो स्ट्रक्चर हमको दिखने लगता है। ई का स्ट्रक्चर जैसे ही आएगा, बड़ा सा इमेज एक हाथी का दिखने लगेगा, ई फॉर एलिफेंट। ऑल्दो वी नो मोर देन 1000 वर्ड्स विद द अल्फाबेट ई, बट हम प्रोनाउंसिएशन में जब भी ई फॉर एलिफेंट ही सामने निकल के आएगा, क्योंकि ये डिपॉजिटेड है, इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस किस आधार पर डिपॉजिट होता है? शुरुआती दिनों में आप याद कीजिए, जब आप अपने स्कूल के दिनों में थे, शुरुआती दौर में, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, आप उनको अगर पढ़ाते हो, सिखाते हो कुछ, तो आप कैसे सिखाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इमेज। बेटा देखो ये होता है एप्पल,
एप्पल का इमेज ऐसा होता है, ये ऐसा ये दिखेगा, इसका मतलब होता है एप्पल। एप्पल आप खाते हो ना? यस सर। एप्पल ये है। एप्पल कैसे शुरू होता है? ए से। तो जब पूछेंगे ए फॉर एप्पल तो आप क्या बोलोगे? एप्पल। बच्चा याद कर लिया, वो कोरिलेट कर लिया ए फॉर, और उसको दिख रहा है वो एप्पल का इमेज। वहां से वो माइंड सेट कर लिया, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा बहुत सारा डिजाइन है जिसको कि हम जानते हैं। मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी, अदरवाइज मैं आपको एक रफ स्केच करके दिखाता। आई एम एबल टू राइट, आई एम एबल टू स्केच समथिंग इन दिस नोटबुक। आप पढ़ के बताने का कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है। कैमरा में अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है, ब्लैक से, थोड़ा मैं आपको जूम कर रहा हूं, दिख रहा है सबको? ब्लैक ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है, ब्लैक पेन से मैंने क्या लिखा है? ब्लैक पेन से मैंने क्या लिखा है? BNS. कुछ नहीं। अब देखिए उसके बगल में एक नाम लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको? Yes sir. नाम दिख रहा है? क्या लिखा है? क्या दिख रहा है? यस सर, यस सर। नहीं। नाम, दैट मीन्स ये मैन, आपको पता है कि ये मेरा नाम है, अल्फाबेट आपको पता है MAYAN, ये आपको पता है, आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। बट दिस इमेज डज नॉट मैच द प्री डिपॉजिटेड सेट ऑफ डिजाइन इन आवर स्टोर्ड हार्ड डिस्क। ठीक यस है? सर। हमारा जो माइंड रूपी ये हार्ड डिस्क है, इसमें ये एस्टैब्लिश्ड नहीं है। दैट्स व्हाई हम उसको आंसर नहीं कर पाए, हम सोच में पड़ गए ये क्या है, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इंसाइक्लोपीडिया कैसे काम करता है, हम इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट करते हैं और उस अपडेटेड इंफॉर्मेशन के आधार पर इंसाइक्लोपीडिया हमें रिस्पॉन्स करता है। वैसे ही आपका माइंड है, आपके माइंड में जो चीज का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगा आप उसके बारे में बता पाओगे, जिस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू से। एंड अल्टीमेट इज द C स्टैंड फॉर चॉइस। जो Yes, हमें दिखता है बहुत सारा, ए से आपके पास कई सारा नाम आया, लेकिन आपका फर्स्ट चॉइस एप्पल बना, एक्शन बना, दैट्स व्हाई यू रिस्पोंडेड एज एप्पल और एक्शन रिस्पेक्टिवली। नहीं तो ये सब कुछ ये यहां से प्रोसेस होता है। मैंने जब कम्युनिकेशन पूछा तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी स्ट्रक्चर्ड इमेज आपको दिख नहीं रहा था, या अगर दिख रहा था तो हाउ टू एक्सप्रेस इट वो समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, और जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन, ये क्योस डेवलप हुआ कि अब कैसे इसको हम प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि whenever we communicate, communication begins with our mind. What we need to communicate with another person, that the first stage is to bringing this process in our mind. Getting my point? हमारे दिमाग में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और वहीं से हम स्टार्ट होते हैं हाउ टू कम्युनिकेट। कुछ बेसिक चीजें हैं कम्युनिकेशन के लिए, कुछ रिक्वायर्ड्स है। पर्सनल प्रोसेस, इट ऑकर्स बिटवीन पीपल, दो लोग मिनिमम होने चाहिए, इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर, मीन्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स, expression or thoughts, emotions, word and actions, control and controlling techniques of the people. It's a social and emotional process. कुछ कॉमन वेज है, हम बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, विजुअल इमेजेस के थ्रू। दीज आर द डिफरेंट मोड्स। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? अगर टॉप टू बॉटम, बॉस से हमारे तरफ, नीचे की तरफ आ रहा होता है कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हमारे तरफ से हमारे बॉस की तरफ जो कम्युनिकेशन जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। लैटरल और हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे, आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, आप अपने ग्रुप से बात करते हैं, अपने टीम से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दो तरीके का होता है, वेयर वी फॉलो स्ट्रक्चर्ड रूल्स रेगुलेशंस। वर्चुअली वर्टिकल इज देयर एज पर एज चेन ऑफ कमांड एंड हायरार्की, we will known that formal network। और जहां पे इस तरह का कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता है हम उसको स्किप करते हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल नेटवर्क्स। हायरार्की कैसे होता है देख रहे हैं आप, यहाँ डायग्राम दे रहा है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एरो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड टू फोरामैन, दिस इज द डाउनवर्ड। जब नीचे से ऊपर जाएगा दिस इज अपवर्ड, ठीक है। यस सर।
हॉरिजॉन्टल लेवल में एक मैनेजर के नीचे 3 सुपरवाइजर है, तीनों सुपरवाइजर आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। मैं स्लाइड्स भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग, ईमेल पे सबको चला जाएगा, डोंट वरी। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे शुरू होता है? सेंडर के माइंड से शुरू होता है, फिर इन कहाँ होता है? रिसीवर जब उसको डिकोड कर पाता है। बीच में एक मीडियम होता है, उस मीडियम के माध्यम से हम कम्युनिकेशन को पूरा करते हैं और प्रॉपर फीडबैक सेंडर ने जो भेजा रिसीवर को मिला कि नहीं प्रॉपरली, वो फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसको रोकने के लिए कई सारे बैरियर भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे नॉइस। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सबको अनम्यूट करवाया था, नॉइज हो रही थी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी, तो नॉइज में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इनएप्रोप्रिएट मीडियम, गलत तरीके से अगर हमारा नेटवर्क का सिलेक्शन गलत हो जाएगा, गलत लिंक पे हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या हमारे बीच कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। तो मीडियम, आज हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके लिए हमारा बेस मीडियम क्या है? गूगल मीट। हम गूगल मीट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो गूगल मीट का जो लिंक है, उसी लिंक पे मैं भी रहूं, उसी लिंक पे आप भी रहेंगे, तभी अप्रोप्रिएट मीडियम कहलाएगा। गलत लिंक पे मैं चला जाऊं या आप चले जाएं, तो हमारे बीच की कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। एजम्पशंस और मिसकंसेप्शंस, कुछ भी अगर एजम्पशंस है, कुछ मिसकंसेप्शंस है, गलत भावना है, तो हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। उसमें हम इमोशंस अगर डालते हैं, दिक्कत आएगा। लैंग्वेज डिफरेंसेस, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। Suppose a North Indian person interact with a South Indian person, there must be the communication gap, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का भाषा कुछ और है और साउथ इंडिया का भाषा कुछ और है। दोनों अपने रीजनल लैंग्वेज में अगर इंटरेक्ट करेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे। इवन इज द मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन पर्सन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली। अगेन द पुअर लिसनिंग स्किल्स, हमारी सुनने की क्षमता कम हो, डिस्ट्रैक्शंस, आप किसी की बात सुन रहे हो, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो, तो प्रॉब्लम आएगा। Difference between hearing and listening. Hearing is a physical process, natural and passive. Listening, physical as well as a mental process. हम बोलते हैं ना, listen carefully, hear me properly, दोनों में क्या डिफरेंस है? listen वर्ड अगर बोल रहे हैं तो listen is automated, listen carefully, क्योंकि वहां पे हमारा मेंटल प्रोसेस, हम एक्टिव है वहां पे, तभी हम प्रॉपरली सुन पा रहे हैं। बिकॉज वी आर लिसनिंग to change our behavior, we are listening to learn something, but hearing बोलते हैं ना, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दिए। ईश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान इसीलिए दिया है, हम कम बोले ज्यादा सुने, जो बात हमारे दिमाग की नहीं है दूसरे कान से उसको रफा दफा कर दे। नहीं, listening is hard, you must participate in the process of listening. Value of listening. Listening is an element of the art. Good listening reflects your courtesy and your good manners. It carefully instructs the supervisors to improve the competencies and the performance. Your listening skill will distresses in business, employment, and social relations. Good listening can eliminate a number of imaginary grievances of employees. It improves social relations. It actively positivates the passive and negative activities. Essentials of communications, क्या करना चाहिए? Always think ahead what you are going to say. आप जो बोलना चाह रहे हो उससे एक कदम आगे बढ़ के आप सोचो। Use simple words and phrases that understood by the everybody. आसान वर्ड, शब्दों का सिलेक्शन हम ऐसा करें। आप देखते हो सुब्रमण्यम स्वामी इतने हाई लेवल इंटेलेक्चुअल्स हैं कि उनके वर्ड्स को समझने के लिए वी नीड टू कैरी अ डिक्शनरी। वो जब कुछ भी लिखते हैं, उनकी जब आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो कई बार बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स होते हैं जिनका आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, जिनका एक कंटेंट पढ़ने के लिए हमको डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज वो इतना हाई लेवल का वर्ड यूज करते हैं जिसका इजी वर्ड अगर वो यूज करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ toughest word. So increase your knowledge on all the subjects you are speak to. Speak clearly and audibly. Check twice with the listener whether you have been understood accurately or not. In case of an interruption, little recap would be there. Undivided actions and speakers while listening. Always make note of the important points. Clarify if you have failed to grasp something. Repeat what the speaker has said to check whether you have understood accurately.
क्या नहीं करना चाहिए. डोंट इंस्टेंटली रिएक्ट और मटर समथिंग इन एंगर. कल भी हमने इस मुद्दे पे बात किया था कि गुस्सा में वो जरूरी नहीं है कि हम इमीडिएट रिएक्ट करें, हम टाल सकते हैं उसको. डोंट यूज टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो. डू नॉट स्पीक इन इनऑडिबल सराउंडिंग्स. जहां पे लोग आपको सुनने वाले नहीं हो, वहां झूठ मूठ का एनर्जी बर्बाद करने से क्या फायदा. एज यू वोंट बी हर्ड, आप सुन ही नहीं पा, आपको कोई सुन ही नहीं पा रहा है. डू नॉट अज्यूम दैट एवरीबडी अंडरस्टूड यू. सी, सब लोग आपके बात को समझ जाएं जरूरी नहीं है, बट मेजोरिटी को आपकी बात समझ में आनी चाहिए. While listening, do not glance here, and there is a might distract the speaker. Do not interrupt the speaker. बोलते वक्त आप बीच में कभी न टोके. Don't jump the conclusion that you have understood everything. बहुत लोग होते हैं ना, एक लाइन सुने नहीं कि ये सही, इसको तो पूरा पता है और उसको कंक्लूजन बना लेते हैं. नहीं, दिस इज द रॉन्ग. How to develop the level of communication? Language improvement, pronunciation improvement, work on the voice modulation. किस वर्ड पे हमको फोकस करना है. वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज का भी सपोर्ट बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है. रीड मोर, लिसन मोर. अवॉइड रीडिंग और वॉचिंग और लिसनिंग अनवांटेड लिटरेचर, गॉसिप्स, मीडिया प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, जो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है. बेकार की चीजों में समय बर्बाद क्यों करें. इंटरैक्ट विथ क्वालिटेटिव पीपल, जिनसे हम कुछ सीख सकें. Improve on you the topic of the discussion. Practice meditation and good thoughts. Think and speak. Do not speak too fast. Use simple vocabulary so that everybody can understand you. Do not speak only to impress someone. Look presentable and confident. ये बहुत essential चीज है. Whatever you speak, you must be confident. How to improve the body languages? Keep appropriate distance. वैसे भी आज हम सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में हैं, तो कितना डिस्टेंस हमको रखना है बिटवीन वन पर्सन और अदर पर्सन, वी नो वेरी वेल. टच ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट. टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस. आप कैसे दिख रहे हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बी अवेयर, पीपल मे गिव फॉल्स क्यूज. गलत बातें भी कोई बोल सकता है, इससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है. ट्राई टू मेंटेन ऑलवेज आई कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस. स्माइल जेन्युइनली. अगर कोई आपको दो शब्द निगेटिव भी बोल रहा है, तो आप एक स्माइल देके ही उसको विदा करें. इट विल क्रिएट योर पॉजिटिव इंसेंस. Definitely success for yours. In the new global and the diverse workplace required excellent communication. Without excellent communication, we are not able to suppose to rise in our performance. We cannot grow in such a manner in which we want to grow. So what we always need to be a better, improved and communicative personnel. Attendance link has been already entered in the chat box. You may mark your attendance there. किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, you must feel free to ask me.
Am I audible? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। सर आपने बताया था बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग को कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है ना जो एक्चुअली में वर्चुअल मोड में समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे छोटा सा एक दो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे इंटरव्यू में जब हम बैठे होते हैं या अपने सीनियर के साथ हम बैठे होते हैं, इवन इन क्लास में, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मल अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं इस तरह से। इफ यू कैन सी मी प्रॉपरली, बिल्कुल बिल्कुल सर। this posture you always see in the classroom. Fine. Students, when either not understanding anything or they are mentally upset, किसी भी रीजन से वो समझ नहीं पा रहे हो या उनको पढ़ाई बहुत प्रेशर लग रहा हो, तो they used to be sit like that. I Yes, suggest, because you all are going to be communicate, you all are going to be commence your new session very soon. So being of this pose, you always be like this pose. आप जब भी कुछ पढ़े और लिखें, योर हैंड शुड बी ओपन लाइक दिस। इस तरह से आप अपने हाथ को डेस्क पे रखें। दैट दिस इज अ सिंबल दैट वी आर हियर टू गेन समथिंग। एंड जैसे ही हम हेड पे हाथ रखते हैं, वी हैव क्लोज, वी आर नॉट गेनिंग समथिंग। कई सारे और भी हैबिट्स हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, नर्वस होते हैं, पहला सिम्टम हमारा क्या होता है? सिर खुजलाना। राइट और रॉन्ग? आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा। नेल बाइटिंग, यस और नॉट? इंटरव्यू के sir. बीच में Yes, sir. उंगली फोड़ना, अपनी उंगलियों को इंटरव्यू के बीच में फोड़ना। Yes, sir. दीज आर द साइंस दैट आई एम कंफ्यूज्ड और आई एम नर्वस। एंड जब भी आप स्ट्रेट बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, आपका बॉडी 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तो स्ट्रेट एंड वेरी कंफर्टेबल। Better you put your both hand, because you are not able to see me as a whole body, so better you put your both hand, पीछे भी आने से आप मुझे नहीं देख पाएंगे पूरा। You put your both hand on into thighs. That will be the most ideal position to interact sir. with seniors, to interact in interviewers. This always create a positive mindset. Part 8, पैर का मूवमेंट कैसा हो, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोग एक पैर को दूसरे पैर पे रख के बैठते हैं। बहुत लोग अपने पैर का जो टॉप फिंगर्स होता है, लोड फिंगर्स पे दिए रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। बहुत लोग टोए पर लोड देते हैं। ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कंट्रोल दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब इंटर करें, आपसे कोई टफ सवाल भी पूछा जाए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। दैट क्रिएट्स ऑलवेज ए पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, जरूरी नहीं है कि जितना कुछ हमसे जितना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे कि मैंने नहीं सोचा हो अब तक, या उस समय तक तत्काल मेरा नजर वहां तक उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा हो। बिकॉज वी ऑल आर लर्नर्स हियर। अब एकेडमिक्स में मुझे 20 साल हो गया, 20 साल से मैं मैनेजमेंट एजुकेशन डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं अपने आप को एक लर्नर ही मानता हूं, क्योंकि हम हर दिन यहाँ सीखते हैं। किसके माइंड में कौन सा आइडिया आ जाएगा, बिकॉज अगर हम अपनी लर्निंग एबिलिटी बंद कर देंगे तो हमारी राइटिंग एबिलिटी बंद हो जाएगी। एंड मेरा खुद का कई सारे न्यूज़पेपर्स में रेगुलर एज ए कॉलमनिस्ट आर्टिकल के रूप में मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो दिस इज व्हाट, कहीं से कुछ सीख रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको एक आर्टिकल फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट मीडिया पब्लिश इट, कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स। तो ये एक एरिया है जहां हम अपने आप को हमेशा एज ए लर्नर ग्रो करा सकते हैं। ये एजम्पशन एटीट्यूड डेवलप कर लेना कि अब हो गया, अब क्या 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अब हमको सीखने की क्या जरूरत है, हम जो जान रहे हैं बहुत है। नहीं, इस साल भी मैंने आप लोगों का पेज, स्पेशली क्योंकि बीबीए और बीसीए का यूनिवर्सिटी डिजाइन करती है सिलेबस, लेकिन पीजीडीएम का सिलेबस डिजाइन करने की अथॉरिटी हम लोगों को होती है। इंस्टीट्यूट खुद डिजाइन करता है, हम लोग हर साल इसको रिवाइज करते हैं। पिछले ट्रेंड में क्या नया चीज आया उसको सिलेबस में ऐड करते हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन हैव मोर बेनिफिट्स।
तो ये हम जब तक नहीं सीखेंगे आपको कैसे सिखाएंगे? इफ वी आर नॉट एबल टू लर्न, हाउ वी मेक यू लर्न? तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा एक डेवलपमेंट स्किल, डेवलपमेंट एटीट्यूड होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे सिर्फ इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के रूप में आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लास में दो बंदे बात कर रहे हैं, सिर्फ उनके तरफ देख लीजिए और चुप हो जाइए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना आपको गुस्सा करने की जरूरत है, ना आपको डांटने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। यू जस्ट साइलेंस फॉर अ मिनट, दैट इंडिविजुअल इटसेल्फ रियलाइज मेरे कारण सब चुपचाप हो गए। उसको खुद बुरा लगा कि नहीं यार, बातचीत करनी ही करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को एग्रेसिवली रिप्रेजेंट करें। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमको बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए असिस्ट करती है, सपोर्ट करती है, एंड वी टेक द एडवांटेज फॉर दैट टू। राइट सुफी? किसका क्वेश्चन था ये? प्रेरणा का? Yes, sir. गॉट योर आंसर? Yes, sir. Any more questions? Ashish has asked how to improve yourself to work in a team. देखो, टीम में कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। टीम के अंदर सबकी कॉम्पिटेंसी एक बराबर हो जरूरी नहीं है। कोई स्टार परफॉर्मर है, कोई लो परफॉर्मर है। इफ यू कुड रिमेंबर, महेंद्र सिंह धोनी के लीडरशिप में इंडियन क्रिकेट टीम ने हर फॉर्मेट में जीत हासिल की है, जो शायद पहले हमने ऐसा नहीं किया था। वेदर इट इज T20, वेदर इट इज टेस्ट क्रिकेट, वेदर इट इज ODI, वेदर इट इज वर्ल्ड कप, हमने हर फॉर्मेट में बहुत अच्छा जीत हासिल किया। रणजी टू। तो दिस इज व्हाट एक फेनोमेना बना। तो वो एक टीम है। ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास जो टीम थी उसमें सब विनिंग माइलस्टोन्स अचीवर्स थे। उसमें ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे, और खासकर तब जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, उस दौर में यू कैन इमेजिन द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर वाज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज प्रेशर। अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो, क्योंकि आप लोग उस समय इतने एबल तो जरूर होंगे कि मैच समझते होंगे। सचिन तेंदुलकर अपने 100th सेंचुरी के लिए बहुत प्रेशर में थे, एंड इट वाज अ वेरी वेरी डीप प्रेशर ऑन हिम। तो सबका कंट्रीब्यूशन है। ऐसे भी प्लेयर थे जो 0 पे आउट होते थे, ऐसे भी प्लेयर थे जो सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट बाबू, पहले एक का कंप्लीट कर दे। तो ये एक जो एटीट्यूड बनता है ना, तो टीम में हमें सबको सपोर्ट करना होता है, और उस कंडीशन में हम अच्छा कर रहे हैं उस टीम में, दैट इज नॉट सफिशिएंट। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब अगर मेरे टीम में कोई बंदा ऐसा है जो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, आई हैव टू हेल्प हिम और हर टू कम आउट फ्रॉम देयर क्राइसिस। उसको कैसे मोटिवेट करें, उसको कैसे सपोर्ट करें, ताकि वो भी अपना काम पूरा कर पाए। क्योंकि टीम में 2-4 लोग अगर परफॉर्म करेंगे तो टीम गारंटेड है कि अच्छी करेगी, लेकिन अगर टीम में हर लोग परफॉर्म करें तो गारंटेड है कि वो टीम हमेशा सक्सेस करेगी, कभी फेलियर नहीं करेगी। तो टीम स्पिरिट इसी को कहते हैं कि अगर एक फेल हो गया तो दूसरा, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा, तीसरा फेल हो गया तो चौथा। मतलब कोई ना कोई रेडी है टीम का बागडोर अपने ऊपर लेने के लिए। और वो जो दौर MS धोनी के समय दिख रहा था, उसके पीछे पर्पस बस यही था कि अगर किसी दिन एक प्लेयर नहीं चला, दूसरा चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा चला। मीन्स हमारे पास इतना वेरिएशन था, इतना अपॉर्चुनिटीज था, एवरीबॉडी वाज ईगरली वेटिंग टू कंट्रीब्यूट एज अ टीम मेंबर, एंड दैट इज द रियल विनिंग स्पिरिट ऑफ द टीम। एंड इस तरीके से हम अपने टीम का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हैं, टीम का मोटिवेशन भी इंप्रूव कर सकते हैं। आशीष, आई होप यू सेटिस्फाइड नाउ? Yes, sir. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करें सर? जैसे कि मान लो कोई न्यू पर्सन होता है, उसके सामने अगर बोलना होता है तो बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन होता है, नहीं बोल पाते हैं। पहले तो ये समझ लो कि हेजिटेशन हमें क्यों है। बीइंग एज अ प्रोफेशनल, बीइंग प्रोफेशनल, चाहे हम किसी भी फील्ड के हो, IT फील्ड के हो, मार्केटिंग फील्ड के हो, HR फील्ड के हो, फाइनेंस फील्ड के हो, इंटरैक्शन इज आवर बेसिक नेसेसिटी। हमको इंटरैक्ट करना ही है, लोगों से बातचीत करनी है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है। अब हम किस बात से डरते हैं? सामने वाला बंदा हमसे बहुत ज्यादा जानता है। पहला माइंड हमें हमारा ये आता है, अरे वो बंदा बाप रे, हमसे तो 40 साल से बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, हम उसके सामने कैसे बोल पाएंगे? नहीं,
वो बंदा बड़ा जरूर है लेकिन उतना ही डाउन टू अर्थ है। कोई भी पेड़ जब छोटा होता है तो इरेक्टेड वे में खड़ा होता है, लेकिन जितना यस सर। ज्यादा फ्रूट उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ हमेशा झुकता चला जाता है। ठीक है, तो वो उतना ही पोलाइट होगा, डाउन टू अर्थ होगा। दूसरी चीज, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम उनके सामने जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ही मुलाकात में इस बात को प्रूफ कर दें कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। ये एटीट्यूड गलत है। हम पहले मुलाकात में, सर आई एम ट्राइंग टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, as I am nowhere in front of you because you have 40 years of experience and I have just taken started of my career, so it is very difficult to speak even a single word to me. मैंने पहले भी कोट किया था, हम लोग क्लासरूम में जब आते हैं ना, यू कुडंट बिलीव, बट आप लोग जब रियल क्लासरूम में आओगे, जब फिजिकल क्लासरूम में जब आप आओगे, आई विल प्रूव इट। कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों को अगर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए डैश के पास खड़ा कर देता हूं, दे स्टार्टेड स्वेटिंग इन द मंथ ऑफ विंटर्स। मुझे पता है कि थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा सुनने में, ठंडे के मौसम में भी उनके चेहरे पे पसीना आने लगता है, हाथ पांव में वाइब्रेशन होने लगता है। बोलना कुछ नहीं, अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन ही देना है, बस इसी चीज पे। क्यों? द हेजिटेशन। प्रॉब्लम इज, वो जानते सब कुछ है अपने बारे में, लेकिन उनको लगता है हम इनके सामने कैसे बोले, इतने सारा मेरा फ्रेंड्स है, कुछ बोल दिए, एक भी बंदा हंस दिया तो मेरा तो मजाक उड़ जाएगा। नथिंग, दे ऑल आर एट पार्स। हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ हमसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। क्लासरूम में जब हम इक्वल लेवल पे बैठे हुए हैं तो वी ऑल हैव इक्वल इंटेलिजेंस, ये एज्यूम करना पड़ेगा। हो सकता है किसी की एबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो, किसी की एबिलिटी थोड़ी कम हो, बट एज ए टीम हम सब एक हैं। जिसकी एबिलिटी ज्यादा है उससे कुछ पूछने में, कुछ सीखने में हमें कोई बुराई नहीं फील नहीं करनी चाहिए, और जिसकी एबिलिटी कम है उसको भी हेल्प करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तब जाके कॉन्फिडेंस गेन होता है एंड वी सक्सीड एज ए टीम। और ये हेजिटेशन धीरे धीरे दूर होगा, क्योंकि हम अपना इमेज बनाने के चक्कर में हम अगर ये फोकस करें, हम सामने वाले से कुछ सीखने आए हैं, हमें उनसे कुछ एब्जॉर्ब करना है, कुछ ग्रास्प करना है, रादर देन अपनी बात मनवानी है कि आई नो द बेस्ट, हम जितना जानते हैं वही सही है। राइट सुफी? यस सर। एंड वर्क फॉर कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स आपके पास वर्ड पावर अगर होगा, कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव हो जाएगा। यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत जल्द अब आप लोगों का रेगुलर क्लास शेड्यूल होने वाला है, फिलहाल वर्चुअल, लेटर ऑन माइट बी इन अक्टूबर इट मे टेक इन फिजिकल फॉर्म टू। कैंपस पूरी तरीके से रेडी है, एवरीडे क्लासरूम्स आर बीइंग सैनिटाइज्ड। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ही हमें क्लीन चिट मिलेगी, वी विल रिज्यूम टू आवर फिजिकल क्लासरूम। आप लोग का ओरिएंटेशन शेड्यूल हुआ है, पता है ना? नो सर। नो सर। नो सर। मेल जाएगा, ऑफिशियल मेल जाएगा उसका। और कोई क्वेश्चन किसी को? No question? Okay, then thank you very much.